layers, fibrous pericardium and serous pericardium. Fibrous pericardium is the outermost layer, जो कि हम देखते हैं पेरिकार्डियम के बिल्कुल फौरन बाद आती है, वो हमारे पास फिब्रस पेरिकार्डियम होती है जो कि थिन लेयर होती है. उसके बाद हम देखते हैं पेरिकार्डियम की दूसरी लेयर आती है सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम हैज टू पार्ट्स. It has two parts. One is parietal pericardium and one is visceral pericardium. Parietal pericardium is the outer layer which is present after the fibrous pericardium, and between the visceral and parietal pericardium there is a cavity present which is known as pericardium cavity, in which the pericardial fluid is present. Now, what is the role of pericardial fluid? Pericardial fluid is present just to prevent the friction, just to protect the heart from, because we know that heart is continuously contracting. So to protect the heart muscles or to protect the heart, the pericardial fluid is present in pericardium cavity. So these are the layers of heart. Now the chambers of heart. There are four chamber present in heart. The right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, and these four chambers are separated by the valve which is present between the right atrium and right ventricle, and left atrium and left ventricle. And there is a septum which is present between these two left and right side, which is known as interventricular septums. Now, how we will recognize that which side is left side and which side is the right side? So the side which came in our left hand is known as right side, and the side which came in our left hand is known as right side, and the side which came in our right hand is known as left side. So this is how we side of the heart. Now we're discussing the internal structures of heart, that what kind of like in what structure the heart is made up of. So the first is, this is the right ventricle, right atrium. Right atrium is the site where it is a conducting site where all the deoxygenated blood from the body came from the superior and inferior vena cava. सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग यहाँ पे होती है. यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम में कॉरोनरी साइनसेस की भी ओपनिंग होती है जो कि ब्लड लेके आती है. अब जाहिर सी बात है हमारे पास ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से पूरी बॉडी से ब्लड आ गया, लेकिन हमारे हार्ट को भी तो मसल चाहिए ना ब्लड. ऑब्वियसली बात है, हमारी अगर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जाहिर सी बात है हमारे हार्ट को भी चाहिए ऑक्सीजन. तो उसको ऑक्सीजन हमारे पास कॉरोनरी साइनसेस प्रोवाइड करती हैं. वो क्या करती हैं, वो हमारे पास मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं, वी नो दैट कि हमारे जो हमने हार्ट पढ़ा उसमें हमने पेरिकार्डियम लेयर पढ़ ली, फिर उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियम भी है. तो मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट में मौजूद होती है. फिर उसके बाद हमारे पास एंडोकार्डियम आती है. तो हमारे मायोकार्डियम से First, this is how coronary sinuses does work. Coronary sinuses क्या करती है, वो हमारी जो मायोकार्डियम है उससे सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे हार्ट से वो लेके आती है. वो लेके आती है बाय कोरोनरी वेन. कोरोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड आता है और वो कोरोनरी साइनसेस में जाके जमा होता है. फिर वो कोरोनरी साइनसेस सारा का सारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में डालती है, जिसकी वजह ताकि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो. ठीक है, फिर हमारे पास आती है, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी से सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से और कॉरोनरी साइनस से अब हमारे पास ब्लड आ गया राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में. वो जाएगा थ्रू वॉल्व विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व इज कंसिस्ट ऑफ 3 cusp which is known as parietal cusp, septal curve and angular curve. Cusp. These 3 cusps are present like this, like they make a triangle kind of a shape, जिसमें इनमें 3 कस्प हो गए और ये 3 कस्प जो है कॉर्डाई टेंडने से जुड़े हुए होते हैं. कॉर्डाई टेंडने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके कस्प को पेपलरी मसल से जोड़ते हैं. अब पेपलरी मसल से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमें जाहिर सी बात है जो वॉल्व का खुलना और बंद होना है वो पेपलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं. पेपलरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉर्डाई टेंडने को खींचेंगे, कॉर्डाई टेंडने की वजह से वॉल्व जो है वो ओपन होंगे, और वैसे जब वो रिलैक्स होते हैं वैसे ही वॉल्व क्लोज हो जाते हैं. तो उसी वॉल्व के, और वॉल्व प्रेजेंट की होते हैं, वॉल्व की प्रेजेंस हमारे पास बैक फ्लो को रोकती है ब्लड को, कि ब्लड हमारा वापस एट्रियम में ना चले जाए, वो वेंट्रिकल में ही आए. ठीक है, फिर हमारे पास कस्प हो गए, हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ वो आ गया है राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल के बाद वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी को हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं. वहां पे पल्मोनरी, यहाँ के इस रीजन में पल्मोनरी ट्रंक भी मौजूद होता है. वो पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास इसलिए हम उसको ट्रंक कहते हैं क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है 2 में, लेफ्ट में और राइट में, इसी वजह से उसको हम ट्रंक कहते हैं. तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे भी सेमिल्यूनर वॉल्व मौजूद होते हैं. वो वॉल्व भी इसलिए मौजूद होते हैं ताकि बैक फ्लो को रोक सके, और वो सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो भी 3 होते हैं जिनको हम कहते हैं लेफ्ट,
एंटीरियर था, हाँ एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट थे। ये 3 कस्प होते हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं। इनकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड होती है, वेयर एज जो ट्राइकस्पाइड या बाइकस्पाइड की बात करें उनकी जो ओपनिंग होती है वो डाउनवर्ड होती है। यहां से अब ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ गया। अब पल्मोनरी आर्टरी के बाद ब्लड जाएगा लंग्स में। यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे मौजूद, मतलब यहाँ पे मौजूद होती है। हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, उससे हमारे पास ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा, एक राइट साइड से जाएगा लंग्स में। लंग्स क्या करेगा, लंग्स के जो एल्वुलाई हैं वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उससे और ऑक्सीजन ब्लड में दे देंगे। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ब्लड आएगा, वहां से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पाइड वाल्व मौजूद होता है। वो बाइकस्पाइड वाल्व के 2 कस्प होते हैं, एक होता है हमारे पास लेफ्ट कस्प और एक होता है इंटीरियर कस्प, एक होता है पोस्टीरियर कस्प, वो जिनको हम मिट्राल वाल्व भी कहते हैं। वो दोनों कस्प जो हैं वो भी हमारे पास बैक फ्लो को रोकते हैं और वो भी कस्प जो हैं वो कॉर्डा टेंडिनाई से जुड़े होते हैं, कॉर्डा टेंडिनाई पेपिलरी मसल से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास अयोटा आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अयोटा आती है, जहां पे हमारे पास अयोटा वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हम हार्ट का वो पार्ट है जो कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड प्रोवाइड करता है। अयोटा के वहां पे भी सेमिल्यूनर वॉल्व मौजूद होते हैं, ठीक है। अब 3 कस्प मौजूद होते हैं उसके भी। वहां से फिर ब्लड जाएगा हमारे पास अयोटा में। एक हमारे पास ये जो है ये हमारे पास अयोटा निकल रही है, ये हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है, ये वाला ये अयोटा, ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। अयोटा पूरी बॉडी को देगा। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक क्या करेगा, हमें पता है, हम 2 इनको लफ्जों में तोड़ते हैं। एक ब्रैकियो जो हमारे आर्म्स को देगा ब्लड, और सेफेलिक जो है हमारे हेड रीजन को ब्लड प्रोवाइड करेगा, और अयोटा हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो ये अयोटा हो गया और ये हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक हो गए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये जाती हैं। अब हम अगर एक्सेस में देखें कौन कौन सी चीजें हमारी रह गई हैं, हमारे जो वेंट्रिकल हैं वहां पे ट्रेबिकुलर सेप्टोमार्जिनल्स भी मौजूद होते हैं। वो एक मस्कुलर बेंड्स हैं जो कि हमारे जो कंडक्शन होती है ना, हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्शन वो करवाती है, हमारी जो इम्पल्स कंडक्शन होती है वो करवाती हैं। और यहाँ पे ट्रेबिकुलर कॉर्नाई भी मौजूद होती हैं जो कि हमारे इर्रेगुलर मस्कुलर मसल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जिगजैग मसल्स होते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करते हैं। ये दोनों चीजें वेंट्रिकल्स में मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें एट्रियम की, तो एट्रियम में इंटर आर्टरियल सेप्टम जो होता है वहां पे हमारे पास ओवल फोसा मौजूद होता है। वो ओवल फोसा जो है वो उसमें होता है, लाइक जब बेबी बर्थ नहीं हुआ होता, फीटल रेमिनेंट होता है, फीटल में मौजूद होता है, जो कि बाईपास कराता है, जो नॉन फंक्शनिंग लंग्स होते हैं उनमें ब्लड की बाईपास कराता है, वो मौजूद है। और जैसे ही बंदा बच्चा बर्थ करता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही वो जो ओवल फोसा है वो कवर हो जाता है। कुछ में कवर नहीं होता, फिर उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस कॉज होती हैं। और यहीं पे हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांचेस भी होती है हमारे पास, जो कि हमारी एक होती है हाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है हमारे पास लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी होती है, और सबक्लेवियन आर्टरी भी हमारे पास लेफ्ट में होती है, राइट में। तो अब सबक्लेवियन आर्टरी जो है हमारे पास एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, एक एओर्टिक आर्क से निकलती है, ठीक है। और हम सबक्लेवियन वो कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो हमारे नेक रीजन में मौजूद होती है कैरोटिड आर्टरी। ये हार्ट जो है गॉड की है, ठीक है। इसमें ये जो लेयर है ये पेरिकार्डियम है जो कि हार्ट की कवरिंग होती है। उस पेरिकार्डियम के अंदर ये वाली जो है ये पेराइटल है और ये विज़रल है। ये जो शाइनी सरफेस आपको नज़र आ रही है इसको विज़रल लेयर कहते हैं, और विज़रल लेयर को ही हम एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो ग्रूव होते हैं, राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। उसके बाद ये यहाँ पर एओर्टिक ट्रंक है और ये एओर्टा है। ये वाला जो इसमें आपको नज़र आ रहा है ये इंटरमीडिएट ग्रूव है। और सर